میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے جو آپ کی سماعتوں کے نام پیش کر رہی ہوں۔ ان دنوں روحانیت کے لفظ سے میں آشنا نہیں تھی۔ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، نہیں جانتی تھی کہ روح اور جسم میں کوئی تعلق بھی ہوتا ہے۔ میں تو اتنا ہی سمجھتی تھی کہ بس سانس نکلی اور انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ عالم ارواح کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوسری زندگی کیا ہوتی ہے؟ اور مرنے والے کا کوئی تعلق اس دنیا میں رہنے والوں سے باقی رہتا ہے؟ یہ باتیں تو آج بھی میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ لیکن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ اس پر کمال یہ کہ میں ان دنوں ماں اور باپ دونوں کی امیدوں کا واحد چراغ تھی۔ اکلوتی ہونے کے سبب ماں باپ کا اتنا پیار ملا کہ لگتا تھا دنیا کی ہر خوشی میری جھولی میں پڑی ہے۔ امی ابو کے بغیر ایک پل میرے لیے گزارنا مشکل تھا۔ وہ بھی مجھ کو اس قدر چاہتے تھے کہ ہماری 3 زندگیوں کا یہ مثلث آفتاب اور انجمن و مہتاب کی مانند جگمگا رہا تھا۔ میرے والدین حسن میں اپنی مثال آپ تھے۔ دیکھنے والے انہیں دیکھ کر چاند سورج کی تشبیہ دیا کرتے تھے۔ دولت، شہرت، آسودہ زندگی اور شمع پروانے کی طرح ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے والے میاں بیوی ہوں تو زندگی خوشگوار کیوں نہ گزرے گی۔ میں اسی پرسکون جوڑے کی بسائی ہوئی جنت میں بے فکری کے دن گزار رہی تھی۔ لگتا تھا ہماری خوشیوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ دکھ، پریشانی، غم کے سائے کیا ہوتے ہیں، میں نے کبھی ان کی جھلک نہ دیکھی تھی۔ ہمارے پرمسرت گھر کی کسی درز میں پریشانیوں کی ہلکی سی رمق بھی داخل نہیں ہو پائی تھی۔ اچانک ہی ایک دن پتہ چلا کہ جنگ کے بادل ہمارے ملک پر خوب گھن گرج سے منڈلانے لگے ہیں۔ یہ 1971 کا سال تھا جب میرے والد صاحب اپنے فرائض منصبی کی خاطر بڑے عزم سے وطن عزیز کی دفاع کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوئے 5 دن گزر چکے تھے۔ اتنے دنوں میں ابو صرف ایک بار چند منٹ کے لیے ہم سے ملنے گھر آ سکے تھے۔ وہ جب بھی دشمن کے کسی علاقے پر بمباری کر کے کامیاب لوٹتے، فوراً اس کی اطلاع ہم کو فون پر دیتے تھے اور ہم خدا کا شکر بجا لاتے تھے۔ امی اور دادی ہر لمحہ ابو کی اور وطن کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی تھیں۔ ان دنوں زندگی صرف اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن تک محدود تھی۔ اس روز ابو نے علیل صبح دشمن کے 2-3 علاقوں پر بمباری کے لیے پرواز کی تھی۔ اپنے مشن پر پرواز ہونے سے پہلے انہوں نے فون پر امی اور مجھ سے بات بھی کی، ہمیں تسلی دیتے ہوئے کامیابی اور باخیریت واپسی کی امید ظاہر کی تھی۔ ابو سے فون پر بات کرتے ہوئے میری آواز بھر آ گئی تھی۔ تب وہ میری دل جوئی کی خاطر بولے کہ تم ایک محافظ کی بیٹی ہو کر غمزدہ ہوتی ہو۔ بھئی میری بیٹی ہو کر چڑیا جیسے دل کی مالک کیسے ہو سکتی ہو؟ زیادہ پریشان نہ ہو، اپنے مشن کو مکمل کرتے ہی فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا اور ناشتہ ہم ساتھ کریں گے۔ ابو کی اس بات نے میرے سہمے ہوئے دل کو تسلی دی۔ پلیز کہانی کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ اور میں بے چینی سے ان کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ لمحوں پر محیط انتظار کی یہ گھٹن گھڑیاں صدیاں بن گئیں جو مجھ سے کاٹے نہ کٹ رہی تھیں۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 اور 4 گھنٹے گزر گئے مگر ابو کا نہ فون آیا اور نہ وہ خود ہی آئے۔ ان کے دفتر میں فون کر کے معلوم کرنا چاہا مگر وہاں بھی کسی کو علم نہ تھا۔ دوپہر گزر گئی، شام ہو گئی، رات کی تاریکی ہر سو پھیل گئی لیکن ابو کو نہ آنا تھا نہ وہ آئے۔ میں اور امی سخت پریشان تھے۔
बार बार उनके दफ्तर फ़ोन करते रहे। कुरान पाक की जितनी सूरतें याद थीं, दिल ही दिल में पढ़ते हुए उनकी सलामती की दुआ करते रहे। दूसरे दिन का सूरज भी तुलू हुआ और फिर शाम ढले दूर कहीं उफ़क़ के उस पार ग़ुरूब हो गया। दिन गुज़रते गए, यहाँ तक कि सुकूते मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा रूनुमा हो गया। हमारे हज़ारों ज़रई फ़ौजी दुश्मन के नरगे में फंस गए। आए दिन कैदियों के नामों का ऐलान होता, लेकिन उनमें मेरे अब्बू का कहीं नाम न होता था। शहीद होने वालों की सरकारी तौर पर इत्तलात उनके घरों को भेजी जा रही थी। जिस जिस घर में शहादत की इत्तला पहुंचती, वहाँ कहराम मच जाता था। हमारे इलाके में चूंकि सब वतन के मुहाफ़िज़ों के ही घर थे, इसीलिए हर घंटे 2 घंटे और के बाद किसी न किसी के घर शहादत की इत्तला आ जाती थी। इंसान अपने जज्बात को कितना भी काबू में रखने की कोशिश करे, मगर जज्बात पर बंद तो नहीं बांधा जा सकता और ना ही आंसुओं को बहने से रोका जा सकता है। लिहाजा मैं भी दिल बर्दाश्त हो गई। पास पड़ोस में अक्सर घरानों में शहीदों के लिए फातिहा ख्वानी होती, कुरान पाक के ख़त्म होते और लोग तसल्ली देने आते थे। ये सब देखकर हमारा दुख और बढ़ जाता। मैं कहती, अम्मी, हम कितने बदनसीब हैं कि अब्बू को ज़िंदा समझकर ना तो खुश हो सकते हैं और ना उन्हें शहीद समझकर फातिहा के लिए हाथ बुलंद कर सकते हैं। ये लोग जिन्हें इत्तला मिल जाती है, कम अज़ कम उनको ये कश्मकश तो नहीं रहती कि हमारे प्यारे किस हाल में होंगे, कहाँ हैं और उन पर क्या बीत रही है, कब लौटेंगे ये लोग। अपने प्यारों की शहादत पर सब्र कर लेते हैं, मगर हमारी गमगो की कैफियत तो जीने और मरने वाली थी। इन दिनों मुझे अब्बू की याद और ज़्यादा शिद्दत से आने लग गई थी। चुपके चुपके खुदा से दुआ मांगती कि ए अल्लाह, अब्बू के बारे में सही सूरत हाल से आगाह कर दे। अगर अगर वो ज़िंदा हैं तो हमें खबर हो, और अगर शहीद हो गए हैं तो भी हमें उनका इल्म हो जाए। मेरे रब, हमें हौसला और सब्र भी अता फरमा। मैं अक्सर शाम को अकेले ही टहलती हुई दूर तक निकल जाती थी। चूँकि चूँकि हमारा इलाका अलग थलग था, यहाँ लिहाजा किसी किस्म का डर खौफ नहीं था। मारीपुर के इस इलाके में रात तो क्या, दिन को भी दूर दूर तक रश नहीं होता था और कोई नज़र नहीं आता था। यहाँ मुझे चहलकदमी करने में कोई मसला न था। अकेली ही यूं वॉक करती, दूर तक निकल जाती। उस रोज़ चहलकदमी करते करते हुए अब्बू की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी। रास्ते भर उन्हीं के बारे में मैं सोचती जा रही थी। शाम के साए गहरे होने लगे तो मैंने वापसी का सोचा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई घर की सिमत आ रही थी कि अचानक अब्बू की शबीह ज़हन में उभरी और मेरी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस रोज़ मैंने कितनी शिद्दत से दिल से अब्बू को याद किया था कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे साथ चल रहे हों। कुछ देर और चलती गई तो यूं लगा जैसे कोई मेरा ताक़ुब कर रहा हो। मैंने जल्दी से पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई न था। सोचा शायद ये मेरा वहम है। ये सोचकर मैंने घर की राह ली और कदम तेज़ कर लिए। थोड़ा सा आगे चली होंगी कि दोबारा किसी के साथ साथ चलने का एहसास होने लगा। इससे पहले कि पलट कर देखती, खुली आंखों से क्या देखती हूँ कि सामने सामने मेरे अब्बू खड़े हैं। उनकी वर्दी उनकी वर्दी पर खून लगा हुआ था, मगर चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि एक दिलकश सी मुस्कुराहट थी और चेहरे पर पुरसुकून छाया हुआ था। सुकून सा छाया हुआ था। उनके लब हिलते हैं जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर बोलते नहीं। खून उनके सर के बालों में लगा हुआ था
और माथे से बहकर चेहरे पर आ रहा था, जैसे सर पर कोई गहरा जख्म लगा हो। मैंने उनसे सवाल किया, अबू, अबू क्या आप शहीद हो गए हैं? वो अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस्बात में सर हिलाते हैं। मैंने कहा, अबू, अबू क्या आप यही बताने आए हैं? उनके लब हिलते हैं, जैसे हाँ कह रहे हों, मगर कोई आवाज़ मुझ तक नहीं आती। मैंने उनके लबों की जुम्बिश से उनकी बात को समझ लिया था। फिर मैंने कहा, अच्छा अबू घर चलें। मैं वफूरे जज्बात में उनके गले लगने के लिए आगे बढ़ी, तो उन्होंने हाथ से इशारे से मुझे रोक दिया और घर की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहे हों कि तुम बस घर जाओ। मैंने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वो मेरी नज़रों से ओझल हो गए। मैं वहीं बुत बन के खड़ी रही और सोचती रही कि खुली आँखों से मैंने क्या देख लिया है। मैंने अपने अब्बू को ज़िंदा मगर ज़ख्मी हालत में देखा। उनसे बात भी की और उन्होंने बगैर कुछ बोले इशारतन मुझे घर जाने का कहा। मुझे जवाब भी दिया, जो मैं समझ भी गई। या अल्लाह! ये तूने मुझे जागती हालत में क्या क्या दिखा दिया? ये कैसी अनहोनी थी जिस पर कोई और यकीन करेगा कि नहीं? इस बात पर मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। दिन रात एक ही बात सोचती थी कि अब्बू कहाँ हैं? अब्बू कहाँ हैं? इस हाल में हैं। मैं उन्हें देखना और उनसे मिलना चाहती थी। मेरी शदीद आरज़ू थी कि उनसे मुलाकात हो। मैं दिन रात दुआएं करती थी कि या अल्लाह, जहाँ भी मेरे अब्बू हैं वो सलामत रहें। और फिर घर के रास्ते में मेरी जागती आंखों ने उन्हें जिंदा सलामत देख लिया। वो किस हाल में थे ये भी देख लिया। गोया मेरी रूह का उनसे लम्हा भर के लिए ताल्लुक़ कायम हुआ और मेरी दुआ कबूल हो चुकी थी। उन्होंने मेरे रूबरू आकर बता दिया कि मैं शहीद हूँ और ज़िंदा सलामत हूँ, और क्योंकि शहीद कभी मरा नहीं करते, यहाँ तक कि उन्हें रिज़्क भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलता रहता है। ये एक मोजज़ा था, मेरे दिल से निकली हुई दुआ का असर था। मैं जो जानने को बेताब थी, वो बात मैं जान गई थी। उन्होंने खुद आकर मुझे अपने बारे में बता दिया था, इत्तला दे दी थी, ताकि मेरा इत्तराब ख़त्म हो और मुझे सुकून मिल जाए। उनकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद मैं कितनी ही देर तक वहाँ आंखें फाड़ फाड़ कर इस रास्ते को देखती रही। मेरी निगाहें उन्हें तलाश करती रहीं, मगर मगर वो दोबारा नज़र न आ सके। रूह का रिश्ता भी बस एक लम्हे को कायम हुआ और फिर टूट गया। कांपती हुई बामुश्किल घर पहुंची। घर आकर अम्मी को सारा वाक़या सुनाया। मुमकिन है कि लोग इस वाक़या पर यकीन ना करें, लेकिन जो मैंने देखा वो महसूस किया, इस पर मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उन्हें एक झलक ज़िंदा हालत में देखा था। इसमें ना कोई तसव्वुर का दखल था और ना कोई ख्वाब। ताहम आज भी मैं इस गुत्थी को हल नहीं कर सकी कि क्या वाकई मरने वालों की रूह अपने किसी जिंदा प्यारे रिश्तेदार से राब्ता कर सकती है। ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। क्या रूहें वाकई इस दुनिया में वापस आ सकती हैं? इस तरह की बहुत ही प्यारी और अच्छी कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल अरीहा कहानियाँ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें।